جی تو دوستو، گزشتہ قسط میں آپ نے دیکھا کہ اسمی کو گوہان اغوا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور وہ کس طرح سے شیرف کے چنگل سے آزاد ہوتی ہے، جبکہ عادل ایلینی سے پوچھتا ہے کہ وہ اوروچ کی موجودگی میں کلینک کیوں نہیں جاتی، وجہ کیا ہے؟ تو ایلینی کو نہ چاہتے ہوئے بھی بتانا پڑتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا عادل ایلینی کی اس خواہش کو پورا کرنے میں معاون ثابت ہوگا یا اس کے راستے کی رکاوٹ بنے گا تاکہ ایلینی اوروچ سے دور رہ سکے؟ مجھے رہے گا آپ کے کمنٹ کا انتظار، لیکن فی الوقت عادل ایلینی کی باتیں سننے کے بعد ایلوی کی طرف چلا جاتا ہے تو ایلینی اس میں سے کہتی ہے عادل مجھ سے ناراض ہے مگر وہ بھی حق پر ہے، تو اس میں کہتی ہے لڑکی ہو کے پہلے بات کرنا ٹھیک نہیں کیونکہ اس کی منگنی بھی ہو چکی ہے۔ تو ایلینی شرمندگی سے کہتی ہے تم صحیح کہہ رہی ہو، اس میں اوروچ سے کسی طرح کا بھی رشتہ یا تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ میں اپنے ہی جذبات کی رو میں یہ کہہ گئی، میرے منہ سے نکل گیا، لیکن میں صرف جان سے اس کا منگیتر نہیں چھیننا چاہتی، یہ بات تو میرے ذہن میں بھی نہیں۔ تو اس میں کہتی ہے لیکن میرے ذہن میں آئی ہے۔ تو ایلینی کہتی ہے کیسے؟ تو اس میں کہتی ہے میری بہن نے تمہیں سمندر میں پھینکا اور میں نہیں چاہتی کہ اوروچ یہ سچ جانے بغیر اس سے شادی کرے۔ تو ایلینی پریشان ہو کر کہتی ہے ایسے مت کرنا، اگر تم مجھے سچ بتاؤ گی تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ میں اوروچ کو نہیں چاہتی مگر میں اپنے جذبات پر یقین نہیں کر سکتی اور میں جانا بھی نہیں چاہتی، میں تم سب کو بہت یاد کروں گی۔ تو اس میں دکھ سے اسے سینے سے لگاتے ہوئے کہتی ہے تم نہیں جاؤ گی، ہم ابھی تو ملے ہیں، جبکہ ایلینی اس میں کی باتوں سے پریشان ہو جاتی ہے۔ یہاں کلینک میں اوروچ ایلینی کی ویڈیو دیکھ رہا ہوتا ہے، جب سیف جان آتی ہے تو وہ موبائل بند کر دیتا ہے اور اس سے بات کرنے لگتا ہے۔ سیف جان کہتی ہے 3 دن رہتے ہیں شادی میں اور تم نے کوئی تیاری نہیں کی، تم یونان گئے اور ایلینی کو واپس لے آئے، تمہاری ماں نے کہا کہ تمہاری شادی ایلینی سے ہوگی، یہ سب کیا ہے؟ تو اوروچ کہتا ہے میں اسے لینے ضرور گیا تھا مگر وہ میرے ساتھ نہیں آئی بلکہ خود کو چاری کے لیے یہاں آئی ہے۔ تو سیف جان کہتی ہے کل میری بہن آئی اور اس نے کہا کہ ایلینی اس کی بیٹی ہے اور تمہاری ماں نے تمہاری شادی ایلینی سے کرنے کی بات کی، تم میرے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو؟ تو اوروچ کہتا ہے کل تم نے میری ماں کی جو بات سنی تو تمہیں یہ بھی یاد ہوگا کہ ہمارا گھر دھماکے سے تباہ ہو گیا ہے، تو میری ماں نے امن کے لیے مجھ سے اس شادی کا کہا، میں نے انکار کر دیا اور تمہیں شادی کی فکر لگی ہے جبکہ میرا گھر دشمن کی وجہ سے دھماکے سے تباہ ہو گیا ہے۔ تم نے یہ نہیں پوچھا کہ تم کیسے ہو، کیا تم ٹھیک ہو؟ یہاں ہم جنگ کی کیفیت میں ہیں اور تم شادی کا پوچھ رہی ہو؟ اور اس کو اس کی باتوں پر دکھ ہوتا ہے تو سیف جان پریشانی سے کہتی ہے تو کیا ان 3 دنوں میں شادی نہیں ہوگی؟ سیف جان کی سوئی ابھی بھی اسی بات پر اٹکی ہوتی ہے تو اوروچ رب سے صبر کی دعا مانگتا ہے۔ تو تبھی امیرم چچا کمرے میں آتی ہیں کہ ایلوی کی ڈرپ ختم ہو گئی ہے۔ اپنی بات کر کے امیرم چچا واپس چلے جاتے ہیں تو سیف جان کو اس کی بات پر حیرت ہوتی ہے، جبکہ اوروچ سیف جان سے کہتا ہے شیرف نے عادل کی کزن کو گولی ماری ہے، غیظب کی جڑواں بہن کو، میں نہیں جانتا کہ وہ دونوں پاگل اب کیا کریں گے، اگر ان 3 دنوں میں زندہ رہا اور بچ گیا تو ہم شادی کر لیں گے۔ اپنی بات کر کے اوروچ چلا جاتا ہے تو سیف جان اس کے جانے کے بعد موبائل چیک کرنے لگتی ہے اور اس کے موبائل سے ایلینی کی ویڈیو دیکھ کر اسے ڈیلیٹ کر دیتی ہے۔ اوروچ ایلوی کی ڈرپ بدلتے ہوئے امیرم دائی سے غیظب کا پوچھتا ہے مجھے امید ہے کہ تم لوگ کوئی گڑبڑ نہیں کرو گے۔ غیظب کا پوچھتا ہے کہ وہ یہاں نہیں ہے جبکہ اس کی بہن یہاں اس حالت میں پڑی ہے۔ تو امیرم چچا کہتا ہے کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے۔ تو اوروچ کہتا ہے میری عادل سے ڈیل ہوئی ہے کہ مینشن کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے مگر غیظب نے کوئی وعدہ نہیں کیا۔ تو امیرم دائی کوئی جواب نہیں دیتا تو اوروچ اسے دیکھتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے، جبکہ رات کو غیظب فرتونہ مینشن میں داخل ہو کر ان کے گھر کے اندر کی دیوار پر دھمکی لکھ کر جاتا ہے۔ یہاں فاطمہ فیکٹری میں آتی ہے جہاں ایسو غصے میں کسی سے فون پر بات کر رہا ہوتا ہے۔ کال ختم ہونے کے بعد جب ایسو پلٹ کر دیکھتا ہے تو فاطمہ اسے ہی دیکھ رہی ہوتی ہے تو وہ اسے کہتا ہے شراکت داری کرنے کے بعد تم لوگوں نے فیکٹری کو تباہ کر دیا، اس کے لیے تمہارا شکریہ۔ تو فاطمہ کہتی ہے تم شکریہ ادا کرو کہ ہم نے تمہاری حویلی کو مکمل تباہ نہیں کیا۔ تو ایسو کہتا ہے میرا صبر ختم ہو رہا ہے، میرا صبر مت آزماؤ لٹل مافیا۔ تو وہ اس کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہتی ہے میں تم سے بات کرنے آئی ہوں۔ تو ایسو کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات سننا پڑتی ہے۔ تو فاطمہ کہتی ہے ابھی جو میں کہنے والی ہوں اس سے مجھے بہت چڑ ہوتی ہے، لیکن یہ جو بم دھماکے اغوا کرنا یا یہ سب کچھ جو اس دشمنی کی وجہ سے شروع ہوا ہے تم اس سب سے واقف ہو؟ تو ایسو کہتا ہے ہاں میں جانتا ہوں، تم ریوڑ کے نیچے کو چلتے ہو۔ تو فاطمہ کہتی ہے ہاں اب یہ وقت ہے کہ اس سب کو ختم ہو جانا چاہیے، تمہاری دادی ٹھیک کہہ رہی تھی۔ تو ایسو اس کی بات پر کہتا ہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے میں تم سے شادی نہیں کروں گا فاطمہ کچاری، تم اس بات کو بھول جاؤ۔ تو فاطمہ اس کے سامنے اسی انداز میں کھڑے ہو کر کہتی ہے تم بہت بڑی باتیں کر رہے ہو فرتونہ چک، طوفان آنے والا ہے، تب اگر تم مجھ سے بھیک بھی مانگو گے تو میں تمہیں قبول نہیں کروں گی، تم دیکھ لینا۔ پھر وہ تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہتی ہے میرا تم سے شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، میں نے مذاق کیا ہے، ہم امن کے لیے کوئی اور حل ڈھونڈ لیں گے۔ تو ایسو کہتا ہے کیا حل نکالا ہے تم نے فاطمہ کچاری؟ تو فاطمہ کہتی ہے میرے ساتھ کچاری چلو۔ تو ایسو کہتا ہے کیا تم پاگل ہوگی ہو، کل تم لوگوں نے ہمارا مینشن تباہ کیا اور آج میں تمہارے ساتھ کچاری جاؤں، کیا منصوبہ بنایا ہے تم نے؟ تو فاطمہ کہتی ہے گھر پر کوئی نہیں، سب شیرف کے پیچھے ہیں اور صرف ایلینی گھر پر ہے، چلو امن کے لیے کوئی حل تلاش کرتے ہیں۔ تو ایسو اس کی باتوں میں آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ کچاری چلا جاتا ہے۔ کچاری پہنچ گیا، جب ایسو گاڑی سے اترتا ہے تو
गैज़ब उस पर पिस्तौल ताने सामने खड़ा होता है। तो इसू को फातिमा के झूठ का एहसास होता है, तो वो फातिमा की तरफ मुड़ता है, जबकि फातिमा उसे कहती है तुमने क्या समझा कि तुमने जो किया हम उसके बाद अमन चाहेंगे। फातिमा की बात मुकम्मल होते ही गैज़ब उसे सर पर मारकर बेहोश कर देता है और वो सड़क पर गिर जाता है कि आदमी उसे रस्सी से बांधते हैं। तभी वहाँ हिजरान भागते हुए आती है और कहती है क्या तुम पागल हो गए हो, तुमने ये क्या किया। तो गैज़ब अच्छे मूड में होता है और उसके सामने आकर कहता है मैंने इसे मारा और बेहोश कर दिया, क्या तुम्हें भी ऐसे ही मारकर बेहोश कर दूं और तुम मेरे बाजुओं में गिर जाओ। अपनी बात करके वो रुक जाता है और उसे देखने लगता है, जबकि हिजरान उसे ही देख रही होती है। फिर वो अपनी बात मुकम्मल करता है, तब मैं तुम्हें उठाकर पहाड़ी चट्टान से नीचे फेंक दूं, कैसा है। तो हिजरान कहते हैं मुझसे मत उलझो और इसू ने कुछ गलत नहीं किया। तो गैज़ब उसकी तरफ मुड़ते हुए कहता है एल्वी ने भी कुछ गलत नहीं किया था। तो फातिमा कहती है हमने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, तुमने मुझे अगवा किया था, क्या ये झूठ है। गैज़ब फिर कहता है फिक्र न करो, हम इसू के एक बाल को भी कुछ नहीं करेंगे और अगर इसकी माँ इसे चाहती है तो वो हमें बताए कि शेरिफ कहाँ है, वो इस शेरिफ को हमारे हवाले करे और इसू को ले जाए। गैज़ब फिर अपने आदमियों के साथ वहाँ से गाड़ी पर बैठकर चला जाता है। तो हिजरान अपने कमरे में आकर छुपा हुआ मोबाइल निकालकर ज़ैरफ को कॉल करती है, जो कि मोबाइल में अपने घर की दीवार पर लिखी हुई धमकी की तस्वीर देख रही होती है, जो शेरिफ के लिए गैज़ब ने लिखी होती है। ज़ैरफ हिजरान की कॉल सुनती है तो हिजरान बताती है कि इसू यहाँ कुचारी में था और गैज़ब उसे बेहोश करके यहाँ से ले गया है। तो ज़ैरफ परेशान हो जाती है और हिजरान से कहती है तुम किसी को जाहिर न करना कि तुमने मुझे कुछ बताया है और मोबाइल को अच्छे से छुपा कर रखना और उन बदमाशों के करीब रहना, मुझे तुम्हारी वहाँ रहने की जरूरत है, किसी को खुद पर शक न होने देना। यहाँ कुचारी में इसमें और एलिनी किचन में खाना बनाते हुए बातें कर रही होती हैं जब आदिल और फातिमा घर आते हैं। तो फातिमा नाराजगी का इजहार करती है तो आदिल उसे खामोशी से बैठे रहने का कहता है और खुद किचन के दरवाजे पर जाकर इसमें और एलिनी की बातें सुनने लगता है, जहाँ एलिनी इसमें से कहती है आदिल की पसंदीदा डिश कौन सी है। इसमें बताती है उसे सिया गोभी के रोल पसंद है। तो एलिनी कहती है हम उसके लिए गोभी के रोल बना सकते हैं। तो आदिल आज कितना खुश होगा जब उसकी पसंद का खाना तुम्हारे हाथ से बना हुआ होगा। तो एलिनी की बातों पर इसमें को पुराना ख्याल आता है जब माजी में इसमें आदिल के लिए खाना बनाकर लाई थी तो इसमें एलिना नाम लेती है। तो आदिल कहता है किसे बुला रही हो, मैं अपना खाना किसी से शेयर नहीं करूंगा। तो इसमें ने आदिल को बताया था कि एलिना हमारी बेटी का नाम होगा और तुम उससे अपने गोभी के रोल शेयर करना पसंद करोगे। तो इसमें उदासी से एलिनी को बताती है कि मैंने 20 साल से गोभी के रोल नहीं बनाए। तभी इसमें की नजर आदिल पर पड़ती है तो वो अंदर आता है और कहता है मैंने सीखा कि ये कैसे बनते हैं और मैंने इस अरसे में बनाए। तो आदिल की बात पर इसमें की आंखों से आंसू बहते हैं, जबकि फातिमा इसमें का कहती है कि इसको बना लेने दो और फिर तुम दोनों लड़ो, वैसे भी तुम्हें यहाँ मनाने वाला कोई नहीं क्योंकि जो कब्र में है वो तो खाना चख नहीं सकती। तो आदिल फातिमा को दिलासा देते हुए कहता है कि वो जन्नत में इससे अच्छे की हकदार है। दरअसल फातिमा आदिल और इसमें की बेटी की बात कर रही होती है जो कि पैदा होते ही मर गई थी। इसमें फिर उनसे कहती है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। तभी ज़ैरफ की कॉल आती है तो फातिमा उससे कहती है पहले फोन सुन लो। तो इसमें ज़ैरफ की कॉल सुनती है तो ज़ैरफ उसे कहती है तुमने कहा था कि कुचारी को कंट्रोल करोगी मगर उसने इसू को अगवा कर लिया है। तो इसमें को हैरत का झटका लगता है और वो फातिमा को देखती है। फातिमा ज़ैरफ से कहती है तुम शेरफ को ले आओ और इसू को ले जाओ। इसमें कॉल बंद करके आदिल से कहती है तुम फातिमा से पूछोगे नहीं ये क्या करना चाह रही है। तो वो कहता है क्यों। तो इसमें कहती है उसने और गैज़ब ने इसू को अगवा किया। तो आदिल कहता है अगर हम ये न करते तो शेरफ तक कैसे पहुँचते। तो इसमें हैरत से कहती है तो क्या ये तुमने करवाया है। तभी उरूज एल्वी को लेकर आता है तो उनकी बातें वहीं रह जाती हैं। उरूज एलिनी को मेडिकल बैग देते हुए कहता है मैंने इसे नींद का इंजेक्शन दिया है, बाकी तुम देख लेना, मैं चलता हूँ। तो इसमें उसे रोकते हुए कहती है पहले तुम इन तंग नजर लोगों की बातें सुन लो फिर जाना। तो आदिल उरूज से कहता है तुम्हारा भाई हमारे पास है। तो उरूज कहता है ये इसका सिला दिया है जो मैंने एल्वी की जान बचाई है। तो आदिल कहता है तुमने इसकी जान ढील के बदले बचाई। तो एलिनी ढील का नाम सुनते हुए कहती है तुमने सौदेबाजी करना नहीं छोड़ी। तो उरूज कहता है हाँ मैंने ये किया अपने खानदान के लिए और मैं आइंदा भी करूंगा। तो आदिल उरूज से कहता है तुम लड़की पर मत चलाओ और जो सौदेबाजी तुमने मुझसे की जब एल्वी मर रही थी अब वो खत्म समझो, तुम्हारे पास जिलावतनी का ऑप्शन रह गया है और अब मैं नहीं रुकूंगा। तो उरूज उसके सामने खड़े होकर कहता है तुम मर्द नहीं हो कुचारी। तो आदिल 10 से 1 तक गिनती गिनने लगता है। तो फातिमा उससे इस गिनती का सबब पूछती है तो आदिल कहता है एलिनी ने ऐसा करने को कहा था। आदिल फिर 1 तक पहुंचने के बाद उरूज को धक्का देते हुए दीवार के पास ले जाता है और कहता है क्या तुम उस वक्त मर्द थे जब तुमने सौदेबाजी की जब एल्वी मर रही थी। आदिल फिर उरूज से कहता है तुम अपने चचा को ले आओ और इसू को ले जाओ वरना हम इसका बदला इसू के खून से लेंगे। और उरूज की बात पर गुस्से से घर से चला जाता है। तो इसमें और एलिनी भी आदिल से नाराज होकर वर्कशॉप चली जाती है तो उसे ताला लगा होता है। तो आदिल वहाँ आकर इसमें को चाबी देता है तो इसमें ताला खोलकर एलिनी को साथ लेकर वर्कशॉप के अंदर चली जाती है। तो वो आदिल को अंदर नहीं जाने देती तो आदिल दरवाजे के बाहर बैठ जाता है।
एलिनी इसमें से पूछती है आदिल इसू के साथ क्या करेगा, तो इसमें कहती है शायद उसका दिल इसकी इजाजत न दे मगर दुश्मनी दिलों पर मोहर लगा देती है। यहाँ फातिमा उसी जगह जहाँ उसे अगवा करके रखा गया था इसू के लिए खाना लेकर आती है और कहती है कल मैं बहुत परेशान थी। तो इसू तंजिया हंसते हुए कहता है तुम वही हो ना जिसने ये जाल बुना, तो अब ऐसा क्यों? तुमने कहा था कि अमन के लिए रास्ता ढूंढेंगे मगर तुमने धोखा दिया। तो फातिमा मुस्कुराते हुए कहती है तुम बहुत जल्दी जाल में फंस गए, तो क्या किसी सौदेबाजी से अमन की राह निकल सकती है? फिर कहती है तुम अपनी जिंदगियां हाली ख्वाबों के साथ गुजार रहे हो। तो इसू कहता है क्या तुम्हें मुझे यहाँ कैद करके रखने में अफसोस हो रहा है? चलो अमन की बात करते हैं। तो वो उसके लिए जो खाना लाती है उसे देते हुए कहती है नहीं, न तो मुझे अफसोस है और न ही अमन की कोई राह है। हम तुम्हें यहाँ ज्यादा वक्त नहीं रखेंगे, तुम्हारी माँ शरफ को ले आए और तुम्हें छुड़वा कर ले जाए। तो इसू खाना खाते हुए उसके पास आकर कहता है क्या ये फातिमा कुचारी के जमीर की आवाज है? तो वो संभलते हुए इनकार कर दिया है, जबकि इसू उसी पर ही नजर रखे होता है। तो फातिमा संभल कर उसे ये कहते हुए वहाँ से जाती है कि मुझ में जमीर नाम की कोई चीज नहीं, समझ गए? तो इसू उससे जाता हुआ देखकर उसका नाम लेकर उसे रोकता है। तो वो उससे रोकने का सबब पूछती है। तो वो कहता है क्या तुम्हें कभी किसी से मोहब्बत हुई? तो फातिमा उसके पास आकर कहती है तुम ये क्यों पूछ रहे हो, क्या चल रहा है? तो इसू खुद ही तंजिया मुस्कुराहट के साथ जवाब देता है कि अगर हुई भी है तो बात नहीं बनी, वजह बिल्कुल वाज़ेह है। तो फातिमा जो उसके लिए खाना लाई थी वो गुस्से से उठा लेती है और उसके हाथ में जो नवाला होता है वो उससे छीन लेती है और गुस्से से कहती है अगर तुम्हारी माँ ने शरीफ को हमारे हवाले ना किया तो हम इसका बदला तुम्हारे खून से लेंगे, ये जहन में रखना कि हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। वो जो चंद लम्हे पहले मुस्कुरा रहा होता है उसके चेहरे से हंसी गायब हो जाती है और वो उदास हो जाता है। जबकि फरतूना मेंशन में उरुज दादी और माँ को वहाँ से जाने का कहता है कि यह मुरम्मत का काम है, आप यहाँ से जाएं। तो ज़रफ कहती है अगर कुचारी ने दोबारा धमाका कर दिया तो उरुज माँ से कहता है मैंने अपने आदमी हर जगह खड़े किए हैं, वो अब यहाँ नहीं आ सकता, हत्ता कि परिंदा भी नहीं उड़ सकता। तो ज़रफ रोते हुए कहती है मेरा बेटा उनके हाथों में है, अगर हम शरफ को नहीं ला सके तो वो मेरे बेटे को कत्ल कर देगा। तभी एक आवाज आती है कि वो कत्ल नहीं करेगा। तो तीनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो एलिनी अपने बैग के साथ वहाँ होती है और कहती है मैं यहाँ यरहमाल बनकर आई हूँ, आदिल इसी को आपके हवाले करेगा तो मुझे लेकर जा सकेगा। ज़रफ की वो बात जिस पर उरुज राजी नहीं होता वो बहुत सच होने लगती है। तो ज़रफ हैरान रह जाती है, जबकि उरुज हैरत के मारे मुस्कुरा भी नहीं पाता। यहाँ आदिल वर्कशॉप आता है तो दरवाजा खुला देखकर हैरान होता है। तो इसमें कहती है मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी और जाने वाली थी। तो आदिल कहता है कहाँ? तो इसमें बताती है फरतूना मेंशन जहाँ एलिनी गई है, हम तुम्हारी दुश्मनी से तंग आ गए हैं। आदिल को गुस्सा आता है तो इसमें कहती है तुम इसू को मेरे हवाले करो, फरतूना से डील करो और इस दुश्मनी को खत्म करो और एलिनी को वापस लाओ। तो आदिल कहता है ये मत करो। तो इसमें कहती है हमने कर लिया जो करना था, हिम्मत है तो तुम भी कर लो जो तुमने करना है। आदिल गुस्से से बाहर जाता है तो इसमें भी बाहर आती है। गैजब उन्हें देखता है तो इसमें से पूछता है ये कहाँ जा रहा है? तो इसमें कहती है मुझे नहीं मालूम। तो गैजब इसमें से कहता है तुम एल्वी के पास रुको और उसका ख्याल रखो, और खुद आदिल और अपने आदमियों के साथ फरतूना मेंशन जाता है। जबकि कुचारी में इसमें एल्वी के पास आती है जो कि नींद में होती है। जब उठती है तो कहती है क्या मैं बच गई हूँ? तो इसमें कमरे का दरवाजा बंद करते हुए कहती है अच्छा है ना कि तुम बच गई हो, वरना मुझे कौन जवाब देता कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला है। तो एल्वी पहले उसकी बात पर मुनकर हो जाती है मगर इसमें के इसरार पर रोने लगती है कि मुझे माफ कर दो। तो इसमें उसे गले लगाती है और कहती है बताओ तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि एलिनी मेरी बेटी नहीं, या शरीफ ने तुम्हें धमकी दी और जब तुमने उसका काम कर दिया तो उसने तुम्हें गोली मार दी। तो एल्वी रोते हुए बताती है कि उसने अता खान को अगवा किया हुआ है। मुझे आखिरी बात यही याद है कि वो बहजत और चैतन नामी दो बंदे थे। तो इसमें उसे दुख से गले लगाती है। फिर मंजर बदलता है और इसमें एल्वी के साथ बैदरिया के घर आती है जहाँ शरीफ गुहान और बहजत के साथ मौजूद होता है। वहाँ बाली भी बेहोश पड़ी होती है तो इसमें शरीफ को देखती है तो वो कहता है ये बेहोश है सिर्फ। जबकि एल्वी बेटे अता खान के पास आती है तो शरीफ गुहान से कहता है तुम एल्वी और अता खान को लेकर जाओ, मैं अपनी बीवी से अकेले में बात करना चाहता हूँ। तो गोहान उन दोनों को लेकर बाहर चला जाता है। तो शरीफ इसमें से पूछता है किसको मालूम है कि तुम यहाँ हो? तो वो कहती है किसी को मालूम नहीं, तुम इन्हें जाने दो, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। इसमें उससे बात कर रही होती है जबकि शरीफ पास पड़ी टेबल के दराज से आदिल की पिस्टल रुमाल में लिपटी हुई निकालता है। उसी लम्हे बाली को होश आता है तो इसमें उसके पास जाती है और उसी लम्हे शरीफ बाली के सर पर इसमें के सामने गोली मार देता है। तो इसमें की सांस रुक जाती है और यहीं इस किस्त का एहतताम होता है। आज की किस्त यकीनन दिल दुखाने वाली थी। तो आपको ये किस्त देखकर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली किस्त का कीजिएगा इंतजार। तो तब तक के लिए रखिएगा अपना और अपने प्यारों का ख्याल। खुदा हाफिज।